Hello everyone, welcome to iQuanta. Once again, I'm Yogesh and this is the 6th lecture of numbers playlist for IPMAT. In this particular video, we are going to cover Euler remainder theorem. Okay, I have already done the basics of remainders in lecture number 5. If you want to learn it, go back lecture number 5 and learn it. Okay, it's very important. If you don't do that part, it will be a bit difficult for you in this particular lecture. So please go back and watch it, get your basics done and then come to this lecture. Okay, I have clearly mentioned we are going to do Euler remainder theorem. So what are remainder theorems? Usually you know that remainders, finding out remainders is very easy. You have a dividend, you have a divisor, simply divide and you get remainder, isn't it? But there are few remainder problems which you cannot do by long division method. Okay, so you make this structure like this and then you have a divisor, dividend. We call it a long division method. Okay, that does not work very efficiently in questions like this. So we are going to do some new types, all the variations. Okay, in IPMAT they do ask remainders. Okay, it has been asked in few years they've asked it. IPMAT 2025 also they asked, few years back they asked. Okay, so पूछते रहते हैं. Okay, and it's important. Okay, आ सकता है question and easy होता है. You just have to apply some logic and you just have to remember how to apply the remainder theorems as it is. Okay, अगर आप वैसे सीख जाते हो उसको अप्लाई करना तो बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हो. समटाइम्स यू डू नॉट इवन नीड अ पेन एंड पेपर टू फाइंड आंसर्स हियर. इसीलिए ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, स्कोरिंग भी है. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट यूलर रिमाइंडर थ्योरम. लेट्स गो अहेड. So in today's video, I'm just going to cover Euler remainder theorem, but I'll give you I'll make you learn basics of Chinese remainder theorem as well. I'll explain the difference between the conditions when they are applied. Okay, so कुछ questions ऐसे होते हैं जो Euler remainder theorem से solve हो जाते हैं, but there are some questions जो Euler से भी solve नहीं होते हैं. तो in that case, Chinese is our savior. Okay, now इसके बाद आप सीख जाओगे सारी चीजें obviously, right? So let's start with Euler remainder theorem. ठीक है, सबसे पहले यूलर रिमाइंडर थ्योरम लगता कब है? इट इज बेसिकली यूज्ड इन हाई पावर रिमाइंडर क्वेश्चंस. अगर कोई एक रिमाइंडर क्वेश्चन है जिसमें आपको हाई पावर दिख रही है तो फर्स्ट थॉट शुड बी यूलर, यानी कि मैक्सिमम चांसेस है कि वो यूलर से ही सॉल्व होगा. कई बार बिना यूलर के भी सॉल्व होता है हाई पावर रिमाइंडर वाला क्वेश्चन. ठीक है, बट मैं स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हाई पावर वाला क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आपका फर्स्ट थॉट आना चाहिए कि चलो यूलर अप्लाई करके देखते हैं. क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, find the remainder when 81 की power 17 is divided by 17. So I have written 81 to the power 17 mod 17. Mod you already know mod क्या होता है. Mod is basically divide this particular number by 17 and find out the remainder. So क्या ये हाई पावर वाला क्वेश्चन है? बिल्कुल है, बिकॉज देखो 81 की पावर 17 कोई आसान काम नहीं है निकालना. इट्स अ बिग नंबर, राइट? सो मेनी डिजिट्स. आप लॉन्ग डिवीजन से कभी नहीं कर पाओगे, कर तो पाओगे बट बहुत टाइम लगेगा. सो ऐसे केसेस में हमारे पास एक थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं यूलर रिमाइंडर थ्योरम, जो कि हाई पावर वाले क्वेश्चंस में लगता है. इससे बड़ी भी हो सकती है पावर समटाइम्स गो अप टू 100, 200, 300 में भी. ओके, बट देयर आर सम कंडीशंस. ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आपको क्वेश्चन दिखा पावर वाला और आपने यूलर लगाना स्टार्ट कर दिया. नो, ये कंडीशंस मीट होनी चाहिए तभी आप यूलर लगा पाओगे. बहुत इजी कंडीशंस है. कंडीशंस टू अप्लाई यूलर रिमाइंडर थ्योरम्स, हाई पावर. पहले तो हाई पावर होनी चाहिए. दूसरा, this is very important. Okay, this is very important. Divisor and dividend must be co-prime. You all know what co-prime is. इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें पहले पढ़ाई थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में. When two numbers have HCF 1, they are called co-prime. Okay, so अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो पहले मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहा हूँ एग्जैक्टली. हाई पावर क्वेश्चन है, यस. डिवाइजर एंड डिविडेंड मस्ट बी को-प्राइम. नाउ सी, 17 आपका डिवाइजर है एंड 81 की पावर 17 आपका डिविडेंड है. देखते हैं कि ये दोनों को-प्राइम है या नहीं है. अब आप सोचोगे कि हम HCF कैसे निकालें इन दोनों का, तो बेसिकली आपको चेक करना है कि HCF ऑफ 81 की पावर 17 एंड 17 ये 1 होगा या नहीं होगा. अब आप सोचोगे कि इतना छोटा नंबर, इतना बड़ा नंबर, HCF निकालने के लिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है. कैसे करेंगे? सी, आपको बस ये देखना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कि क्या आपका जो छोटा नंबर है, जो डिवाइजर है, क्या वो इसको डिवाइड कर रहा है. मतलब क्या 17 से 81 डिवाइड होगा? बस आप इतना चेक कर लीजिए. ठीक है, क्या 17 से 81 डिवाइड होगा? होता है? नहीं होता है. इसका मतलब ये दोनों क्या है? को-प्राइम है. ओके, बिकॉज सी 17 क्या है. नाउ सी, हाउ डू यू हैव टू चेक कि HCF 1 होगा या नहीं होगा. यहाँ पे 17 है, यहाँ 81 है, तो यानी कि ये जो नंबर है 81 की पावर 17, इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 81. यस और नो? So can I write it as 81x because it's a multiple of 81, because बड़ा सा नंबर है, बहुत सारे 81s मल्टीप्लाई होंगे 17 टाइम्स.
तो जाकर के मल्टीपल ऑफ 81 ही मिलेगा। और ये जो क्या है 17 आपका, ये 17 है बेसिकली। क्या 17 और 81 में कुछ कॉमन होता है? आई मीन क्या कुछ भी कॉमन है 81 के किसी मल्टीपल और 17 में? मतलब नहीं कॉमन है, इजंट इट, बिकॉज ये प्योरली मल्टीपल ऑफ 81 है। आप 17 से अगर 81 को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, है ना? यस और नो? सो देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम। व्हेन नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, तो भाई सिंपल हम क्या बोल सकते हैं कि उनका HCF जो आएगा वो 1 ही आएगा। यस और नो? आप खुद सोचिए इस चीज को, है ना, कि 81 की पावर 17 है और 17 है, तो क्या 17 और 81 में कुछ भी नंबर कॉमन है? जैसे सपोज अगर यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होती, मेरे नंबर्स मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, से एक नंबर होता मेरा 50 और से 102, ओके, यहाँ पे एक नंबर होता मेरा 102 की पावर से 18 एंड मॉड 17 निकालना होता। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 17 और 102, 17 इज डिवाइडिंग 102 कंप्लीटली, यस और नो? तो अगर डिवाइड कर रहा है 17 102 को, तो ऑब्वियसली जो 102 होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, तभी ये डिवाइड हो रहा है उससे। तो अगर 17 का मल्टीपल है तो पक्का उनमें 17 तो कॉमन होगा ही होगा, यस और नो? सो इसीलिए हम क्या करेंगे कि विल सिंपली से दैट ये एक 81 का मल्टीपल है एक तरीके से, और 81 की पावर 17 है और 17 है ना, तो क्या इनमें कुछ कॉमन है? नो। दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, 81 आपको दिख रहा है, 81 एक्चुअली होता क्या है? 81 क्या होता है? 81 इज एक्चुअली 3 टू द पावर 4 एंड उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 17 एंड 17 यहाँ पर है आपका। अब 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 17, सो 3 की पावर 68। दिस इज अ प्योर मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज अ प्योर मल्टीपल ऑफ 17। क्या 3 और 17 के मल्टीपल्स में कुछ कॉमन होता है? नहीं। तो इसका मतलब इनका HCF 1 हो जाएगा। अगर HCF 1 है सो दे आर कोप्राइम, यानी कि हाई पावर क्वेश्चन है और ये कोप्राइम भी है। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी आप यूलर लगा सकते हो। अब यूलर लगाने की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है? सबसे पहले लर्न करते हैं द प्रोसेस टू अप्लाई यूलर। सो फर्स्ट स्टेप इन अप्लाइंग यूलर इज फाइंड आउट यूलर ऑफ डिवाइजर, यूलर वैल्यू of divisor. What is the divisor? The divisor here is 17. अब यूलर वैल्यू निकालते कैसे? तो सबसे पहले यूलर वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज E of n, दैट इज बेसिकली n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन b इंटू 1 माइनस 1 अपॉन c एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब बेसिकली n क्या है? वो नंबर जिसका आपको यूलर निकालना है। 1 माइनस 1 अपॉन ए, ये क्या है? ए बी सी, ये ए बी सी आर बेसिकली प्राइम फैक्टर्स, यस और नो? ये आपके उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं। जैसे कि मैं आपको एक यूलर सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अगर निकालना है मान लो यूलर ऑफ 100, तो आपको कैसे पता लगेगा कि 100 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? यू नो दैट 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं? प्राइम की पावर समथिंग के फॉर्म में लिख देते हैं, यस और नो नंबर को। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। सो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100? 2 and 5 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100। सो यूलर ऑफ 100 क्या आएगा? यूलर ऑफ 100 विल बी 100 इंटू जितने प्राइम फैक्टर्स है उतने ब्रैकेट्स, कितने प्राइम्स है 100 के? 2। सो 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5 विल स्टॉप। अगर इससे ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होंगे किसी नंबर के तो हम और ब्रैकेट्स ऐड कर सकते हैं, 1 माइनस 1/c, 1 माइनस 1/d, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। बट आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? 100 इंटू 1 माइनस 1/2, इफ यू टेक LCM, सो 2 माइनस 1/2 इज 1/2 एंड 1 माइनस 1/5 इज 5 माइनस 1, 4/5। तो 2 5 जब 10 होता है, 10 से एक 0 गया, 40। द यूलर वैल्यू ऑफ 100 इज 40, यस और नो? पहला स्टेप होता है यूलर वैल्यू निकालना, ठीक है? किसी भी नंबर की यूलर वैल्यू निकालना अगर आप यूलर थ्योरम अप्लाई कर रहे हो। नाउ आई विल जस्ट इरेज दिस पार्ट, यूलर वैल्यू ऑफ 100 वाला। व्हाट इज द नंबर दैट आई हैव? आई हैव द डिवाइजर एज 17। सो अगर मुझे 17 का यूलर निकालना है, हाउ शुड दैट बी डन? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट 17 नाउ। इट्स वेरी इजी, ओके? बस आप इतना सुन लीजिए 2 मिनट के लिए, यू विल गेट इट। 17 एक नंबर है मेरा, इसी का मुझे यूलर निकालना है, बिकॉज यूलर ऑफ डिवाइजर निकालते हैं, यूलर वैल्यू ऑफ डिवाइजर। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? सिर्फ 17 होता है। क्या 17 का और कोई प्राइम फैक्टर है? नो। 17 एक प्राइम नंबर है, उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं,
all prime numbers have just two factors, 1 and the number itself. क्या 1 prime है? No. 1 is neither prime nor composite. Only 17 is the prime factor of 17. So Euler of 17 will be the number 17 first n into एक ही prime factor है इसका, तो 1 minus 1 upon 17, and that gives you 17 into 1 minus 1 by 17 is 16 by 17. Okay, so 17 से 17 कट हो गया, 16 आया. ऐसे ही अगर आप सपोज यूलर ऑफ 5 निकालते हो, मतलब यूलर ऑफ 5 कितना आएगा? 5 के कितने प्राइम फैक्टर होते हैं? जस्ट एक ही, 5 इज ऑल्सो प्राइम. सो 5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5, व्हाट डू यू गेट? 5 इंटू 4 बाई 5, दैट इज 4. एक पैटर्न नोट कीजिए, 17 एक प्राइम नंबर था, इसका यूलर कितना आ रहा है? 16, यानी कि 1 लेस देन 17. जिस नंबर का आप यूलर निकाल रहे हो, अगर वो नंबर प्राइम है तो उसकी यूलर वैल्यू हमेशा उससे 1 लेस होती है. जैसे यूलर ऑफ 5, यूलर of 5 is also a prime number. What is the Euler value of 5? It is 4. So you have to remember that, you simply have to remember that अगर आपके पास कभी भी आपको किसी प्राइम नंबर का यूलर निकालना है तो don't do all this calculation. Okay, now you simply know the result कि किसी भी यूलर नंबर का प्राइम नंबर का यूलर क्या होता है? द प्राइम नंबर माइनस 1. आई होप दिस इज विजिबल. इतना अगर आपको आता है तो आप आधा क्वेश्चन कर चुके हो. ठीक है, आई होप ये यूलर पार्ट आपको क्लियर है. ओके, सो इन माय क्वेश्चन व्हाट डू आई हैव? आई हैड टू फाइंड आउट द यूलर वैल्यू ऑफ 17 बिकॉज इट्स अ हाई पावर क्वेश्चन. डिवाइजर एंड डिविडेंड आर को-प्राइम. आई विल सिंपली फाइंड आउट द यूलर ऑफ माय डिवाइजर, दैट इज इक्वल टू 16. बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स हैव यूलर 1 less. So Euler of 17 will be 17 minus 1, that is 16. I have already proved that. अब जो आपकी यूलर वैल्यू आई है 17 की 16, इस यूलर वैल्यू का काम क्या होता है? The Euler value has one simple task. The Euler value simply divides the power of the dividend. आपके जो डिविडेंड की पावर है उसको डिवाइड करता है क्या? यूलर वैल्यू. अभी यूलर वैल्यू कहाँ से आई, क्या मतलब है इसका मैं समझाऊंगा, बट फर्स्ट लर्न दिस प्रोसेस. ओके, बिकॉज अप्लाइंग दिस प्रोसेस बेसिकली टेक्स यू टू द आंसर. अगर आप यूलर वैल्यू 16 से पावर 17 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इफ यू डिवाइड 17 द पावर बाई 16 you get remainder 1. Yes or no? And this 1 will become the new power. New power. यही तो यूलर का काम था, यही था यूलर का काम. यूलर basically came to reduce the power. Earlier the power was 17, but after applying Euler, we can say that the new power of 81 will be 1 after applying Euler theorem. And write entire question as it is. The power has been reduced from 17 to 1. That was the basic task of Euler, and that is why in high power questions we use Euler to reduce the power. अब ये manually doable है, आप कर सकते हो ना. 81 को you can divide with 17, yes or no? What will happen? 17 4 या 68, 13 रिमाइंडर बचेगा. So 81 को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे 13 is your remainder. That's your answer. As easy as that. Step 1 high power question. Okay. Second step, क्या डिवाइजर डिविडेंड को-प्राइम है? हाँ, अगर को-प्राइम है तो यूलर लग सकता है. अगर नहीं है को-प्राइम, डोंट अप्लाई यूलर. इन दैट केस वी हैव अ सेपरेट थ्योरम कॉल्ड चाइनीज, वो हम बाद में पढ़ेंगे. बट अभी सारे क्वेश्चंस में आपको जनरली डिवाइजर एंड डिविडेंड को-प्राइम दिखेंगे. ओके, आफ्टर दैट यू फाइंड आउट द यूलर वैल्यू ऑफ द डिवाइजर. यूलर वैल्यू निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देन यूलर का फॉर्मूला लगाओ, आ गया यूलर वैल्यू. यूलर वैल्यू डिस्टर्ब्स द पावर, पावर को डिवाइड करके नए रिमाइंडर से रिप्लेस कर देती है. आई थिंक इफ यू अप्लाई इट in few more questions, things will be clear to you. What do you see here? 2 की पावर 2004 mod 7. High power question. Okay, first thought will be Euler. Second, are divisor and dividend co-prime क्या 7 और 2? Because ये 2 का पावर 2004 है तो ये 2 का मल्टीपल होगा, ये 7 का मल्टीपल. क्या 2 और 7 में कुछ कॉमन होता है? HCF? No, 2 और 7 का HCF होता है 1. इसका मतलब ये दोनों को-प्राइम है. इसका मतलब यूलर लगा सकते हैं. अगर यूलर लगा सकते हैं, इतना आप वर्बली कर सकते हो. ठीक है, अगर आप यूलर अप्लाई कर सकते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यूलर ऑफ 7 निकालोगे. आई जस्ट टोल्ड यू दैट यूलर ऑफ अ प्राइम नंबर इज 1 लेस देन द नंबर. सो यूलर ऑफ 7 विल बी 7 minus 1, दैट इज 6. व्हाट इज द टास्क ऑफ दिस 6 यूलर वैल्यू? इट डिस्टर्ब्स द पावर, यानी कि पावर को डिवाइड करती है. पावर 2004 विल बी डिवाइडेड विद द यूलर वैल्यू, न्यू वैल्यू 6. 6 से अगर आप 2004 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6 या 18, 20 बचेगा. 6 या 18, 24, 0 बचेगा. 0 0 becomes the new power. 0 आपकी क्या हो जाएगी? New power. So now the question will transform to, now the question has been transformed to, base तो ऐसी रहेगा 2, पावर कितनी हो जाएगी? 0,
मॉड 6, ठीक है। ओके 7 ओनली, ओके 7, यहाँ पे 7 आएगा बिकॉज क्वेश्चन हमारा क्या था, 7 था ना, ठीक है। मॉड 7, ओके। 2 की पावर 0 इज 1, 1 मॉड 7। अगर आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 1। ऑब्वियसली 1 को 7 से डिवाइड करो। अब काफ़ी बच्चे ये भी पूछते हैं कि 1 को 7 से डिवाइड करने में 1 कैसे आया। 7 0 0, यू गेट 1, ओके। आई होप यूलर अप्लाई करना आपको आ गया है, सिंपल। हाई पावर क्वेश्चन, कोप्राइम है या नहीं, अगर कोप्राइम है तो यूलर निकालो डिवाइजर का, जो आएगा उससे पावर को डिवाइड करो, पावर को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो न्यू पावर बन जाती है। एंड नाउ यू सिंपली सॉल्व योर क्वेश्चन लाइक दिस। इफ यू हैव एनी डाउट कीप आस्किंग, बट विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ओके। दैट इज फाइंड 25 की पावर 50 मॉड 18। हाई पावर क्वेश्चन है, 25 की पावर 50 बड़ा पावर है 18। क्या 25 और 18 में कुछ कॉमन है? सो 18 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 2 3 6 9 एंड 18, यही 18 के फैक्टर्स हैं। क्या 18 का कोई भी फैक्टर 25 को डिवाइड कर रहा है? देखो 1 को मत लेना, ठीक है, डोंट टेक 1। व्हाई? बिकॉज 1 तो सबको डिवाइड करता है ना। यू विल जस्ट सी दैट कि बाकी बचे फैक्टर्स एक्सेप्ट 1, क्या कोई भी कॉमन है 25 के साथ? नो। 2 25 को डिवाइड नहीं करता, 3 नहीं करता, 6 नहीं करता, 9 नहीं करता, खुद 18 नहीं करता। तो 25 और 18 में बेसिकली कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर कुछ कॉमन ही फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनका HCF 1 हो जाएगा। सो कैन वी से दैट 25 की पावर 15 18 आर कोप्राइम? यस, इफ दे आर कोप्राइम। सबसे पहले आप क्या करोगे? यूलर वैल्यू ऑफ 18 निकालोगे। बट यूलर वैल्यू ऑफ 18 निकालने से पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, बिकॉज 18 प्राइम नहीं है। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 × 3 स्क्वायर, यस और नो? सो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18? 2 and 3. So 18 का यूलर क्या हो जाएगा? द नंबर 18 into 1 minus 1/2 into 1 minus 1/3. That is equal to 18 into 1 minus 1/2 is half. 1 minus 1/2 is 1 minus 1/3 is 2/3. This is gone. You get 6 again. This Euler value disturbs the power. ये यूलर वैल्यू पावर को डिवाइड करेगी और रिमाइंडर निकालेगी। सो 50 इज द पावर मॉड 6। कितना आएगा? 50 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 गया 48, 2 बचेगा। दिस 2 बिकम्स द न्यू पावर। वही प्रोसेस में बार बार अप्लाई कर रहा हूँ। बस हाँ, मुझे ये ध्यान देना कि मेरा जो डिवाइजर है वो प्राइम है या नॉन प्राइम है। नॉन प्राइम है तो ऐसे करेंगे, अगर प्राइम है तो सीधा यूलर वैल्यू ऑफ अ प्राइम इज प्राइम माइनस 1। सो न्यू पावर इज व्हाट? 2। अब क्वेश्चन क्या बन गया है? 25 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 18, मतलब हमें इसका रिमाइंडर निकालना है। ये तो हमारे लिए ईजी है। मैंने आपको बताया था 25 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 18 कैन डायरेक्टली डिस्टर्ब द बेस। 18 25 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? रिमाइंडर 7, तो 7 स्क्वायर बन सकता है। कैसे? 25 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 25 × 25/18। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि रिमाइंडर्स जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। जैसे 18 से 25 डिवाइड होगा तो वी कैन रिप्लेस इट विद द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर 7। 18 डिवाइड्स 25 अगेन रिप्लेस्ड विद 7, तो न्यू रिमाइंडर्स विल बी मल्टीप्लाइड। 7 समझा 49, 49 डिवाइडेड बाई 18 कितना जाएगा? 18 to 36, रिमाइंडर आएगा 13 एंड दैट्स योर आंसर। आई होप ये भी क्लियर है आपको, ठीक है। तो हाई पावर क्वेश्चंस में हम यूलर क्यों यूज करते हैं, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप वर्बली भी कर सकते हो। कैसे? देखो, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। सो आई वुड सजेस्ट कि रिमाइंडर्स के कम से कम 30-40 क्वेश्चन कर लो अलग अलग टाइप के, और एक ही दिन में कर सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। व्हाट डू यू सी हियर? 50 की पावर 51 की पावर 52, है ना। अगर कोई चीज़ 50 की पावर में लिखी हुई है, जैसे सपोज मैं लिख देता हूँ 50 की पावर 10, ये क्या है? दिस इज एक्चुअली अ मल्टीपल, राइट? मल्टीपल ऑफ 50। या मैं लिख देता हूँ 50 की पावर 2500, ये भी मल्टीपल ऑफ 50 है, यस और नो। या फिर मैं लिख दूँ 50 की पावर 51 की पावर 52, यस और नो। सो इवन इफ आई राइट 51 की पावर 50 की पावर 51 की पावर 52, ये क्योंकि 50 की पावर में चल रहा है सब कुछ, तो ये भी तो मल्टीपल ऑफ 50 होगा। ठीक है, हमने डिक्लेयर क्या कर दिया कि ये 50 की पावर में चल रहा है सब कुछ, तो ये 50 का मल्टीपल है। देखिए मैं अचानक से 50 की मल्टीपल पावर में कैसे घुस गया, 50 के मल्टीपल में कैसे घुस गया? सी 50 ये 50 का मल्टीपल है और इसको आप 7 से डिवाइड कर रहे हो। वैसे तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये हाई पावर क्वेश्चन है, हाई पावर है तो यहाँ पे यूलर लग जाना चाहिए सीधा, है ना। तो कायदे से प्रोसेस क्या होनी चाहिए? वी विल चेक वेदर 50 एंड 7 आर हैविंग HCF 1 और नॉट। तो आप सिंपल बेस को देख लो, 50 और 7 का HCF 1 होता है? हाँ होता है।
तो यूलर लग सकता है। यूलर 7 का निकलेगा कितना 6, बिकॉज 7 एक प्राइम है। तो 6 क्या करेगा, पावर को डिवाइड करेगा, सिर्फ इस पूरी पावर को। दैट इज द एक्चुअल प्रोसेस, बट देयर इज अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज दैट वे? आप सिंपली क्या करोगे, आप ये देखोगे कि यार कभी कोई 50 का मल्टीपल अगर आता है, सिर्फ 50 का कोई भी मल्टीपल आप ले लीजिए, 50 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है 7 7 जा 49, तो कितना बचता है आपके पास, यू जस्ट रिमेनिंग विद 1, यस और नो। अगर आप 50 की पावर कुछ और ले लेते हो, उसे 50 की पावर 3, तो भी क्या होता है 50 इंटू 50 इंटू 50, and if you divide it by 7, 7 7 जा 49, remainder 1, 7 7 जा 49, remainder 1, 7 7 जा 49, remainder 1, so 1 divided by 7, remainder is 1. So what do I declare from here? अगर 50 की पावर कुछ भी होगी और 7 से डिवाइड हो जाएगी तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन बिना यूलर लगाए आप सिंपली भी देख सकते हो कि जो बेस है उसको 7 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज अगर एक क्वेश्चन होता 50 की पावर 80 डिवाइडेड बाई 7, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डिवाइजर कैन डायरेक्टली डिस्टर्ब द बेस। तो 7 से अगर आप 50 बेस को डिवाइड करोगे, आप इसको डायरेक्टली बिना कोई रिमाइंडर थ्योरम लगाए चेंज कर सकते हो। तो 7 से 50 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 1, 1 की पावर 80 डिवाइडेड बाई 7, 1 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज 1 ओनली रिमाइंडर। ओके, आई होप आप समझ रहे हो। देखो दो चीजें हैं, अगर आप पावर को डिस्टर्ब कर रहे हो किसी भी चीज की, व्हेनेवर यू आर डिस्टर्बिंग द पावर यू कैन नॉट डू इट विदाउट अप्लाइंग एनी रिमाइंडर थ्योरम, मतलब यूलर के बिना आप पावर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बट आप हमेशा अपने डिवाइजर से जो डिविडेंड है उसके बेस को डायरेक्टली डिस्टर्ब कर सकते हो। जैसे 50 की पावर 80 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका डिविडेंड है, डिवाइजर है 7 से, यू कैन ऑलवेज डायरेक्टली डिस्टर्ब द बेस एंड रिप्लेस इट विद द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर। तो 7 से 50 डिवाइड होगा, रिमाइंडर आएगा 1, पावर एज इट इज रहेगी। तो मैंने क्या करा, पावर को नहीं छेड़ा, देखो पावर इज एज इट इज। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट ये बस समझाने के लिए था कि 50 की पावर चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी हो, हमेशा 7 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 देती है। क्यों? क्योंकि 7 से अगर आप डायरेक्टली बेस को डिवाइड कर देते तो 7 7 जा 49, तो यहाँ 1 आ जाता, आप बेस को डिस्टर्ब कर सकते थे। सो 1 की पावर 50, 1 की पावर 52, 1 की पावर कितनी भी हो, दैट बिकम्स 1, 1 डिवाइडेड बाय 7 बिकम्स 1, दैट्स योर रिमाइंडर। आई होप ये क्लियर है आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिना कुछ ज़्यादा लगाए इसमें आपका काम बन जाता है। यहाँ भी ऐसा ही है, देखो अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको यहाँ दिख रहा है कि 50 और 25, 50 और 25 का HCF निकालो, क्या 1 आ रहा है? नो, तो नो, नॉट कोप्राइम, नॉट कोप्राइम है तो सीधा यूलर भूल जाओ, यहाँ से यूलर नहीं लगा सकते आप, ठीक है। फिर कैसे करें इसको, लेकिन हमें एक चीज दिख रही है कि ये 50 की पावर समथिंग है, तो आप 50 की पावर चाहे 1 हो, चाहे 50 की पावर 2 हो, चाहे 50 की पावर 3 हो, आप किसी को भी 25 से डिवाइड कर लो। अगर आप 50 की पावर 1 को यानी 50 को 25 से डिवाइड करोगे, है ना, से 50 मॉड, ओके, 50 की पावर 1 मॉड 25 करोगे, तो 50 को 25 से डिवाइड करोगे, 25 या 50, रिमाइंडर बचेगा 0। अगर आप 50 की पावर 2 को 25 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 25, 25 से अगर आप 50 डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 0, 25 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 25, रिमाइंडर इज 0। 50 की पावर 3 का भी यही हाल होगा, 50 की पावर 3 में भी आप 25 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको पता है आप डायरेक्टली बेस को डिस्टर्ब कर सकते हो। तो 25 से 50 डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो दिस क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म्स टू 0 क्यूब डिवाइडेड बाय 25, दैट मींस 0 डिवाइडेड बाय 25 व्हिच गिव्स यू 0। सो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली यू कैन सी वेरी वेरी क्लियरली कि जो 50 है ये बेस में, इसको 25 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 0। जैसे मैंने अगेन ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। ये डिवाइजर कभी भी पावर को बिना यूलर के डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो पावर पूरी आपकी पावर ये है बेस, बेस को डायरेक्टली डिस्टर्ब करके आप रिस्पेक्टिव रिमाइंडर से रिप्लेस कर सकते हो। तो 25 से 50 को डिवाइड करो 0, 0 की पावर एनीथिंग 0, 0 डिवाइडेड बाय 25 0, दैट्स इट, ओके। लेट्स गो अहेड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, 50 की पावर 51 की पावर 52 डिवाइडेड बाय 51 आपको रिमाइंडर निकालना है। तो सोचिए 50 की पावर 51 की पावर 52 डिवाइडेड बाय क्या है 51, 51 से इसको डिवाइड करना है उसको, ठीक है। अब आप सोचोगे कि 50 और 51 हाई पावर क्वेश्चन है, यूलर लगाते हैं, 50 51 को प्राइम है, को प्राइम है, बिल्कुल है। 50 और 51 का 50 और 51 का HCF 1 होता है, ठीक है। तो को प्राइम है, आप लगा सकते हो यूलर, बट उससे लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन। यूलर वैल्यू निकालो, फिर पावर को डिवाइड करो, फिर नया कुछ आएगा, फिर उसको रिप्लेस करो, लॉन्ग वे। यहाँ पे सीधा सीधा कुछ पॉसिबल है, दैट इज कि जो 50 है बेस में, अगर आप, मैंने बोला ना कि दिस डिवाइजर कैन डायरेक्टली डिस्टर्ब द बेस,
यानी कि ये इसको डायरेक्टली डिस्टर्ब करके रिमाइंडर से रिप्लेस कर सकता है। अगर आप 51 से 50 को डिवाइड करते हो, क्या आप ऐसा कह सकते हो कि रिमाइंडर -1 आएगा? हाँ, 51 से 50 को डिवाइड करने पे मैंने नेगेटिव रिमाइंडर बताया था पिछली क्लासेस में, प्लीज गो बैक एंड चेक। 51 1 जा 51, कितना आएगा? -1। अगर मैं यहाँ -1 से रिप्लेस कर दूँ बेस को, -1 की पावर 50, सॉरी 51, राइट, 51 की पावर 52। अब आपको डिवाइड करना है इसे किससे? 51 से, बिकॉज डिवाइजर तो हमेशा वैसा ही रहता है ना, डिवाइजर कभी चेंज नहीं होता। -1 की पावर 51 की पावर 52 है। अब आप सोचो, कई बच्चे यहाँ पे पता है क्या करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, 50 की पावर 51 की पावर 52, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, लेकिन यहाँ 50 की पावर 51 की पावर 52 है। ये दोनों के दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है, तो मैं नॉट इक्वल टू का साइन लगा दे रहा हूँ। दीज टू नंबर्स आर नॉट सेम। व्हाई? बिकॉज 50 की पावर 51 की पावर 52 को आप क्या लिख सकते हो एक्चुअली में? आप सबको पता है कि जब हम सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ते हैं तो ऐसी कंडीशंस आती है हमारे पास, x की पावर a की पावर b। इन दैट केस व्हाट डू वी डू? वी जस्ट डू x की पावर a इंटू b। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 50 की पावर, ये फाइनली बन जाएगा 50 की पावर 51 इंटू 52। yes or no? It will become like that. But this is not equivalent to 50 की पावर 51 की पावर 52। ये एक्चुअली क्या है? 50 अलग से बेस में है एंड पावर में आपका अलग से 51 की पावर 52 चल रहा है। तो there's a difference between 51 की पावर 52 and 51 into 52। yes or no? That is the reason they are not equal। ऐसे क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। अब मैंने इसको क्यों कराया आपको, देखो। अच्छा, एक चीज आपको और नोटिस में आई होगी कि नेगेटिव रिमाइंडर करने पे यहाँ -1 आ रहा है, तो -1 की पावर 51 की पावर 52 बनेगा डिवाइडेड बाय 51। अब आप मुझे बताइए कि -1 की पावर ये है, ये इवन होगी या ऑड होगी? दिस पार्ट, क्या 51 की पावर 52 ऑड होगा या इवन? ऑब्वियसली ऑड होगा, बिकॉज ऑड नंबर की पावर कुछ भी कर दो आप। 51 एक ऑड नंबर है, उसकी पावर आपने 52 कर दी है, तो ऑड नंबर की पावर एनीथिंग इज ऑलवेज ऑड। तो 51 की पावर 52 एज अ होल नंबर विल बेसिकली बी ऑड। सो कैन आई से दैट -1 की पावर होगी ऑड डिवाइडेड बाय 51। ये बन जाएगा क्वेश्चन। -1 की पावर ऑड हमेशा -1 होता है, तो -1 डिवाइड बाय 51। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि -1 को 51 से डिवाइड करने पे हम क्या करते हैं? रिमाइंडर निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 51 - 1 50। एंड एक्चुअली दिस विल बी योर आंसर, 50 विल बी योर आंसर। ओके, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं रिमाइंडर्स में कभी कि डायरेक्टली बेस को डिस्टर्ब करके चीजें सॉल्व हो रही है, 1 बन रहा है या 0 बन रहा है या -1 बन रहा है, जिससे आप फास्ट जा सकते हो। बट ऐसा अगर नहीं हो रहा है, सपोज यहाँ 57 लिखा होता, तो 51 से डिवाइड करने पे 57 को आप मैक्सिमम बेस को क्या कर सकते थे? सपोज यहाँ 57 लिखा होता, यहाँ 51, तो 51 से 57 डिवाइड होता तो 6 रिमाइंडर आता, तो क्वेश्चन बनता 6 की पावर 51 की और 52। तो 6 की पावर 51 की पावर 52 को सॉल्व करना सीधा आसान नहीं है कंपेयर टू कि 1 की पावर समथिंग आ जाए या -1 की पावर समथिंग आ जाए। आई होप ये आप समझ रहे हो ना, ये ऑब्जर्वेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने इनको विदाउट यूलर सॉल्व कर दिया, मतलब मैंने पावर को कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, खाली बेस को डिस्टर्ब करके सॉल्व कर दिया। जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, 7 की पावर 109 mod 17, ठीक है, हाई पावर क्वेश्चन। यस, क्या 7 और 17 का HCF 1 है? हाँ, सो दे आर को प्राइम। इफ दे हैव HCF 1, को प्राइम है तो यूलर लग सकता है। अगर यूलर लग सकता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिवाइजर 17 का यूलर निकालना पड़ेगा। क्या यूलर ऑफ 17 क्या होगा? प्राइम है, तो 17 - 1। यूलर ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज प्राइम -1, 16। अब इस 16 का काम क्या होता है? इस पावर को डिस्टर्ब करना। तो 16 क्या करेगा? 109 को डिवाइड करेगा। तो 16 से अगर आप 109 को डिवाइड करो कितना होगा? 16 6 जा 96, 16 7 जा 112 हो जाता है, तो 16 6 जा 96। 16 से अगर आप 109 को डिवाइड करोगे तो पावर रिमाइंडर कितना आएगा? 16 से 96 13 बचेगा, तो 7 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 17। अब मैं आपको यूलर के बारे में 2-3 चीजें और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं बता रहा हूँ बिकॉज अभी ये एप्लीकेशन सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज यूलर के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज इफ यू अप्लाई यूलर वंस, ओके, इफ यू अप्लाई यूलर वंस, maximum power reduction happens, maximum power reduction is done। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूलर को 2 बार लगाओगे, अभी आप क्या सोच रहे हो? अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा अभी तो पावर 109 थी, अब 13 हो गई यूलर लगा करके,
अभी भी तो 7 की पावर 13 कोई छोटा नंबर नहीं है, दोबारा यूलर लगा देते हैं। दोबारा यूलर लगा के कोई फायदा नहीं होगा। यूलर एक बार लग जाता है अगर क्वेश्चन में तो एक ही बार लगाना चाहिए, उसके बाद वो काम नहीं करता है। बिकॉज अब अगर आप यूलर लगाओगे ना इसमें 7 की पावर 13 को 17 से डिवाइड करने पे, अभी भी ये हाई पावर क्वेश्चन है एंड डिवाइजर डिविडेंड कोप्राइम है 7 17। अगर आप अभी यूलर लोगे 17 का तो क्या आएगा 16। 16 से अगर आप 13 को डिवाइड करोगे पावर रिड्यूस नहीं होगी, मतलब स्टिल पावर वही रहेगी, क्योंकि यूलर वैल्यू क्या करती है, पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर से रिप्लेस कर देती है। तो क्या 17 का यूलर होगा 16, 16 13 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 13 ही रहेगा, यानी कि पावर चेंज नहीं होगी 13। इसलिए यूलर एक बार लग गया तो मैक्सिमम पावर रिडक्शन हो जाता है। याद रखना, 2 बार यूलर मत लगाना ये सोच करके कि मेरा जो ऊपर पावर है वो और छोटा हो जाएगा। ऐसे केसेस में अगर आप फंस जाओगे, यहाँ पे अभी भी आपको पावर बड़ी दिख रही है, ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, सी ये आपको दिख रहा है 7 की पावर 13। इसको करने के 2-3 तरीके हैं। कैसे, आप एक काम करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 लिख दिया, तो 13 है तो 6 यहाँ ले सकते हैं और एक 7 की पावर 1 अलग से ले सकते हैं, राइट। और ये हो गया 17, ठीक है। 7 स्क्वायर की पावर 6 क्या होगा, 49 की पावर 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 17। अगर आप 17 से 49 को डिवाइड करोगे तो 2 तरीके लिखने के पॉसिबल है। या तो 17 टू 34 करो, यहाँ 15 आ जाएगा। 17 टू 34 यहाँ कितना आ जाएगा 15 रिमाइंडर बचेगा ना। देखो आप डायरेक्टली डिवाइजर से बेस को डिस्टर्ब कर सकते हो 49 को। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप 17 से अगर 49 को डिवाइड करते हो तो 17 3 जा 51, यानी कि -2 भी मिल सकता है। -2 नंबर छोटा कर रहा है मेरा, नेगेटिव रिमाइंडर लेने से मेरा जो ऊपर आ रहा है वो छोटा आ रहा है। बिकॉज 17 से इफ यू डू 17 टू 34 यू गेट 15 की पावर 6। 15 की पावर 6 बड़ी चीज है, लेकिन -2 की पावर 6 तो अगर मैं इसको -2 लिख दूं यहाँ, आई होप ये सबको क्लियर है। अब तो मेरा काम आसान हो गया, बिकॉज -2 की पावर 6 कितना होता है 64। तो 64 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 17। अब ये क्वेश्चन लग रहा है मैनुअली डुएबल। 64 को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे तो 17 3 या 51, 17 3 या 51, रिमाइंडर आएगा 13। देखिए आपकी मर्जी है कि आप नेगेटिव रिमाइंडर लो या पॉजिटिव रिमाइंडर, बट मैथमेटिकली जैसे मैंने बताया रिमाइंडर कैसे सॉल्व होते हैं वही होने चाहिए, तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। 17 3 या 51, रिमाइंडर आएगा 13, तो कितना आएगा 13 7 या 91, 91 डिवाइडेड बाई 17। 17 4 या 68, 17 5 या 85, फाइनली बचेगा 6 ही आपका आंसर हो जाएगा। पूरी प्रोसेस देखो आप, सबसे पहले कोप्राइम थे, यूलर लिया 17 का 16 आया है ना। 16 ने क्या किया, पावर को डिस्टर्ब किया, तो 16 6 या 96, 13 पावर में बचेगा, न्यू पावर आपकी 13 हो जाएगी। 7 की पावर 13 में यूलर दोबारा नहीं लग सकता था, मैंने बताया था कि अप्लाई, अगर आप एक बार यूलर को अप्लाई कर लेते हो तो मैक्सिमम पावर रिड्यूस हो जाती है। मैंने 7 की पावर 13 को डायरेक्टली कैलकुलेट तो नहीं कर सकता हूँ, तो इसको मैंने और छोटा करने की कोशिश कैसे करी, मैंने 13 को लिख दिया 7 की पावर 13 को 7 स्क्वायर की पावर 6 इंटू 7। 7 स्क्वायर होता है 49 की पावर 6 है ना, इंटू 7 बाई 17। 17 से मैंने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर आया -2 की पावर 6 एंड देन क्वेश्चन छोटा हो गया, मेरा आंसर निकल गया। दैट्स हाउ आल्सो यू कैन डू योर क्वेश्चंस। ओके, सो रिमेंबर अभी तक हमने रिमाइंडर्स में क्या सीखा है कि ऐसा क्वेश्चन है अगर तो ये 17 जो है ना, ये बेस को डायरेक्टली डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। एक बात तो ये होगी, लेकिन पावर सिर्फ कब डिस्टर्ब होती है, जब यूलर निकलता है। बिना यूलर के आए आप पावर को नहीं छेड़ सकते। हाँ, बिना यूलर के आए आप पावर को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो, ओनली दिस वे कि आप 7 की पावर 109 को 7 स्क्वायर की पावर समथिंग लिख करके ऐसे छोटा बना लो। जैसे यहाँ पे 7 की पावर 13 थी, मैंने 7 स्क्वायर की पावर 6 लिखा इंटू 7, ये देन ये छोटा हो गया पावर, ऐसा नो, दिस वे ऑल्सो यू कैन डू इट, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आता है बस। अब मैं आपको एक ऐसा वेरिएंट करा रहा हूँ जिसमें मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं और इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आई मीन पेपर में क्वेश्चन आए हैं, मैं भी PYQ आपको कराऊंगा, बट ये टाइप का क्वेश्चन बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 12 की पावर 107, यहाँ अटेंशन पे करना, इसीलिए मैं आपको पहले यूलर पढ़ाया, ठीक है। अच्छा, आप रिमाइंडर से क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो 1-2 स्टेप्स आप पहले लगा सकते हो। सिंपली हमेशा ट्राई करना कि पहले ही स्टेप में आप इस डिवाइजर से इस बेस को डिस्टर्ब कर लो। तो 13 से 12 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 12 ही आएगा। छोड़ दो, नहीं हो रहा ना बेस छोटा। और जैसे देखो, अगर मेरे पास क्वेश्चन होता 241 की पावर 78 डिवाइडेड बाई से 13, तो आप एक काम करो, इवन तो यहाँ पे यूलर लग सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी, बिकॉज हाई पावर क्वेश्चन है। आप एक काम कीजिए, हमेशा ट्राई कीजिए कि 13 से 241 को आप पहले ही स्टेप में छोटा कर लो। तो 13 से 241 को करोगे डिवाइड, कितना आएगा, 13 1 जा 13, 111 बचेगा, 13 7 जा 91, देन उसके बाद कितना आएगा 104, तो 7 आएगा। तो 7 आएगा ना, 13 से 241 बेस को रिमाइंडर डिवाइड करके 7 आएगा, तो 7 की पावर 78 डिवाइड बाई 13। ये आप पहले ही स्टेप में कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है।
उसके बाद आप पावर को छोटा करने के लिए यूलर लगा सकते हो। बट यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं? सी 12 की पावर 107 डिवाइड बाई 37, हाई पावर क्वेश्चन है, यूलर लग सकता है, लेकिन यूलर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि 12 और 37 का HCF 1 है या नहीं है। HCF 1 है इनका, बिल्कुल इनका HCF 1 है, बिकॉज 12 37 को डिवाइड ही नहीं कर रहा, तो HCF 1 ही होगा ऑब्वियसली। तो कोप्राइम है तो यूलर लग सकता है, यूलर लग सकता है, तो भाई यूलर किसका निकलना चाहिए? 37 का। यूलर ऑफ 37 क्या आएगा? बिकॉज यूलर एक प्राइम, आई मीन 37 एक प्राइम नंबर है, नॉट यूलर। 37 माइनस 1, ओके, दैट इज 36। ये 36 जो यूलर वैल्यू आई क्या करेगी? ये जाएगी यहाँ पर और इसको डिवाइड करेगी, हाँ या ना? 12 की पावर 107, बिकॉज यूलर वैल्यू का काम होता है जो पावर थी ओरिजिनल उसको डिवाइड करके नए रिमाइंडर से रिप्लेस करो ताकि पावर छोटी हो जाए। लेकिन अब आप लोग यहाँ पे एक चीज फोकस करिए, यहाँ पर 36 क्या 107 को डिवाइड करता है? नहीं करता, यस और नो? बट 36 से आप 107 को डिवाइड करके रिमाइंडर तो निकाल ही सकते हो। आई मीन इफ यू डिवाइड 107 बाई 36, तो 36 टू जा 72, कितना आएगा आपका? 35 आएगा, यस और नो? हाँ या ना? आई होप दिस इज क्लियर। 36 टू या 72, बिकॉज 36 3 आप करोगे तो 108 नेगेटिव आ जाएगी। पावर नेगेटिव कभी मत करना, ठीक है? पावर नेगेटिव मत करना कभी भी। 36 की पावर आप अच्छा 36 से यू डिवाइड 36 वॉज द यूलर, आपने उससे 107 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 35। चलो आप 12 की पावर 35 कर लो, छोटी होगी ना पावर, डिवाइडेड बाय 37। एक बार यूलर लग गया, दोबारा यूलर लगा के कोई फायदा नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तो यूलर नहीं लगना चाहिए दोबारा। अब क्या करोगे? अब अगर आप इस 12 की पावर 35 को सॉल्व करने गए ना, इवन इफ यू टेक 12 स्क्वायर की पावर 17 ऐसे करके, व्हेन यू इस पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना 12 स्क्वायर की पावर 17 ऐसे करके, ये सुनो ऐसे करके करोगे तो भी बहुत लंबा टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पर एक कैच ये है जो आपको खुद सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा? बिल्कुल दिख रहा है आपको एक्चुअली, व्हाट इज दैट कैच? आपके पास ही 12 की पावर 107 डिवाइड बाय 37, आपने इसका फिर भी यूलर लगा करके चलो छोटा कर लिया। अगर अगर इसकी यूलर वैल्यू क्या है? इसकी यूलर वैल्यू है 36, ये सुनो। अगर गलती से मेरी पावर 36 होती, अगर मेरी पावर 36 होती, ठीक है, जैसे मतलब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता कि 12 की पावर 36 डिवाइडेड बाय 37, ऐसा होता क्वेश्चन। इस पार्ट के बारे में सोचिए सिर्फ अभी, ठीक है? अगर यूलर ऑफ 37 36 आ रहा है और पावर भी 36 का मल्टीपल है, या फिर पावर ऐसी है कि वो यूलर वैल्यू से डिवाइड होने पे 0 दे रही है, तो क्वेश्चन आसान नहीं हो जाता? ऑब्वियसली यूलर वैल्यू 36 है, इसकी डिवाइजर की, उससे आप पावर को डिवाइड करोगे 36 से 36 को, रिमाइंडर आएगा 0। तो उस केस में रिमाइंडर कितना आता? 1 डिवाइड बाई 37, दैट मीन्स 1 आता रिमाइंडर। बात आसान पड़ जाती, हाँ या ना? ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, आप अटक गए हो यहाँ पर। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? आप एक चीज सोचोगे, ठीक है, आपको दिख रहा है कि अगर ऐसी पावर होती जो यूलर वैल्यू से डिवाइड होकर 0 दे रही है तो काम आसान हो जाता, हाँ या ना? तो अब हम उसी स्टेप पे जा रहे हैं। मैंने क्या बोला? पावर 0 होनी चाहिए आफ्टर डिवाइडिंग बाय द यूलर वैल्यू। जस्ट फोकस अपॉन दिस पार्ट, ओके? जस्ट अ मिनट। सी, इस सारा पार्ट को हटा देता हूं, ठीक है? मैं आई होप ये भी सबको क्लियर है। अगर कभी आपको बीच में समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज रिप्ले एंड लिसन टू मी वर्ड बाय वर्ड। व्हाट डिड आई से? इस क्वेश्चन में इवन आफ्टर अप्लाइंग यूलर कोई फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज यूलर लगाने के बाद 12 की पावर 35 आ रहा था, पावर बहुत बड़ी अभी भी 12 की पावर 35, तो यूलर लगाने के बावजूद भी अगर पावर बड़ी रह रही, फिर क्या करें? उस केस में पक्का आपको ऐसे सोचना है कि अच्छा ठीक है, अगर मेरा इसका यूलर 36 है, इसका यूलर है 36, और पावर कुछ ऐसी होती, यूलर ऑफ 37, ओके, यूलर ऑफ 37 इज 36, अगर पावर कुछ ऐसी होती जो इस यूलर वैल्यू से डिवाइड होने पे 0 दे रही होती, तो वो कौन सी पावर हो सकती थी? सोचिए आप। 36 की पावर, अगर ये यहाँ पे 36 से आप पावर 108 को डिवाइड कर रहे होते, 36 3 होता है 108, तो अगर पावर 108 होती, अगर पावर 108 होती, तो 108 होती और क्वेश्चन ऐसा होता कि डिवाइडेड बाय 37, रिमाइंडर क्या होगा? तो आपको ऑलरेडी पता है कि यूलर ऑफ 37 कितना आएगा? 36। 36 अगर 108 को डिवाइड करेगा तो बात बन जाएगी कि 12 की पावर 0 हो जाएगा, बिकॉज 36 विल कंप्लीटली डिवाइड 108, मेक द पावर 0, डिवाइड बाय 37, एंड 1 डिवाइड बाय 37, आपका आंसर हो जाता है 1। तो आपको एक रिजल्ट पता है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना पड़ता है?
एक नोन रिजल्ट को यूज करके आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाऊंगा, ठीक है। 12 की पावर 108 डिवाइडेड बाय 37, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था आपसे बिकॉज पावर यूलर लगाने के बावजूद भी कम नहीं हो रही थी, तो आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, 12 to the power 108 divided by 37, this is a known result. How is it known? Because you obviously know कि अगर यूलर का डिवाइजर 37 है, उसका यूलर 36 है, 36 अगर ऐसी पावर को डिवाइड करते हैं जो 36 का ही मल्टीपल हो तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक ऐसी पावर ढूंढी जो 36 का मल्टीपल होगी, इसी के आसपास ढूंढी जो गिवन पावर है 107, वही 108, एंड मुझे पता है उसका रिमाइंडर 1 आता है। अब इस रिजल्ट को मैं यूज करूंगा, सी हाउ। नाउ चेक हाउ डू आई यूज दिस रिजल्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इतना अगर किसी ने गेस कर लिया, एक्चुअली आपने 50% क्वेश्चन यहीं पे कर लिया है, ठीक है। 50% क्वेश्चन इज डन। ये सोचना ही 50% पार्ट है क्वेश्चन का, ओके। नाउ क्या आप 12 की पावर 108 को 12 इंटू 12 की पावर 107 लिख सकते हो? यस, एंड डिवाइडेड बाय 37, यू कैन डू इट, राइट। एंड यू ऑलरेडी नो कि आपका रिमाइंडर क्या है, 1, हाँ या ना। यानी कि 12 की पावर 108 को 37 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आता है, हाँ भैया वो मैंने अभी भी कर रखा है। आप मुझे बताइए कि कोई नंबर है, ये एक नंबर है, सुनो, दिस इज अ नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 37 रिमाइंडर दे रहा है 1। तो आपको मैंने एक दिन एक रूल पढ़ाया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, अगर आपको याद है, मैंने रूल पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो सपोज मैं एक बस सिचुएशन एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। एक नंबर है जो 37 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, 1 दे रहा है। तो सपोज मैं एक नंबर ले लेता से, कोई भी एक नंबर 38 ले लेता हूं मैं। 38 को 37 से डिवाइड करोगे तो 37 बन जा 37, रिमाइंडर विल बी 1। आप 38 डिविडेंड को कैसे लिख सकते हो, 38 है मेरा वही नंबर जिसको मैं 37 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इट कैन बी रिटन एज 37 डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 1। अब इस बात को, इन दोनों चीज़ों को जो रिलेट कर लेगा वो बहुत इजीली काम कर लेगा। मैंने एक जैसे एग्जांपल लिया आपके लिए कि एक नंबर है 38 जिसको 37 से डिवाइड करने पे 1 आता है, तो आप उसको कैसे लिख पाते हो उस नंबर 38 को, यू कैन राइट दैट नंबर एज 37 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये भी तो एक नंबर है जो 37 से डिवाइड होने पे 1 दे रहा है, ये भी एक नंबर है जो 37 से डिवाइड होने पे 1 दे रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर, यही तो मेरा वो नंबर है। ये नंबर को भी हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज माई डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 37 इंटू कोशेंट। अब भाई क्वेश्चन मेरे को नहीं पता, क्यों, क्योंकि इतने बड़े नंबर को आप 37 से डिवाइड कर रहे हो, मुझे क्या पता क्वेश्चन, राइट। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, बट एक्स लिख लो उस क्वेश्चन को आप, बट रिमाइंडर तो आपको पता है 1। तो क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 37x प्लस 1 की फॉर्म में? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इज 70-75% डन। लास्ट स्टेप हमको लगाना है, दैट इज हमको पता लग गया है कि ये पार्ट जो है 37 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 देता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 12 इंटू 12 की पावर 107 है ना, इज एक्चुअली इक्वल टू 37x प्लस 1। दिस इज अ नंबर ऑफ फॉर्म दिस, हाँ या ना, दिस इज अ नंबर ऑफ दिस फॉर्म। सो हम क्या कर सकते हैं, मतलब इससे डिवाइड होने पे 37 से डिवाइड होने पे ऐसा दे रहा है, तो क्या हम कर सकते हैं, अब हमें किस पार्ट में इंटरेस्ट है, हमें इस पार्ट में इंटरेस्ट है, तो हम इस पार्ट को यहीं रखते हैं, इस 12 को ले जाते हैं इसके नीचे। तो क्या हो जाएगा, 12 की पावर 107, 12 टू द पावर 107 डिवाइडेड बाई 37 विल बी इक्वल टू, बिलो दिस 37x प्लस 1 वील हैव दिस 12 नाउ, सो 37x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12। आई होप ये क्लियर है आपको। मैंने क्या बोला कि हम यूलर लगा रहे थे, इसमें तो कोई फायदा नहीं होता बिकॉज पावर फिर भी बड़ी थी, बट हमें एक नॉन रिजल्ट पता था कि 12 की पावर 108 को 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, वो पार्ट मैंने आपको बताया। फिर मैंने 12 की पावर 108 को ऐसे ब्रेक कर दिया, बिकॉज मैं चाहता था कि मैं 12 की पावर 108 क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है 108 के अंदर 107 भी आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको ब्रेक करके लिखा 12 की पावर 108 को ऐसे, ठीक है। 12 की पावर 108 को मैंने ब्रेक करके लिखा ऐसे। अब मुझे वो पार्ट मिल गया जिसका मुझे आंसर निकालना था, दैट इज 12 की पावर 107 डिवाइडेड बाय 37, यही तो मुझे निकालना है। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये एक नंबर है जो 37 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 दे रहा है। तो यूजिंग दिस रूल कैन आई से दैट दिस नंबर इज ऑफ फॉर्म 37x प्लस 1, यस। तो इस नंबर को 37 से डिवाइड करने पे क्या मैं इस 12 को 37x प्लस 1 के नीचे ले जा सकता हूँ? हाँ, मैं ले गया, मैं यहाँ आ गया। यहाँ पर पहुँचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। ये मेरा रिमाइंडर वैल्यू देगा मुझे इससे, इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे करोगे इसे सॉल्व? आपको x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 12 से डिवाइड हो जाए। बस x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 37x + 1 को 12 से डिवाइड करवा दे। तो क्या x = 1 पे ये हो पाएगा? क्या x = 1 पे 38 आएगा ना? x = 1 पे 38 आएगा। क्या 38 12 से डिवाइड होता है? नो। क्या x = 2 पे बात हो पाएगी? 37 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 12, 75 डिवाइडेड बाई 12। क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? ये आपको एक होल नंबर देना चाहिए, ठीक है? इट शुड नॉट गिव यू अ फ्रैक्शन, होल नंबर। क्या x = अगर मैं 3 डालूं तो कितना आएगा? 112। 112 12 से डिवाइड होता है? नो। इस पार्ट को तेज करने के लिए आपको क्या करना है? देखो, इस पार्ट को कैसे फास्ट करना है ये समझा रहा हूं मैं। जो मैंने सोल्यूशन बताया है, मतलब आई वुड से कि भाई सबसे बेस्ट तरीका यही है इस क्वेश्चन को करने का। इसको बार बार रिप्ले करोगे नहीं समझ में आ रहा। हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं 37x + 1 डिवाइडेड बाई 12 में हम x की ऐसी कोई वैल्यू डालें जो क्या हो मेरे को, बिकॉज रिमाइंडर मुझे यही देने वाला है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू रिमाइंडर। सो यहाँ से हम रिमाइंडर निकालने के लिए x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो 12 से डिवाइड कर दे इस पूरे नंबर को 37x + 1। तो ये भी तो एक डिवीजन क्वेश्चन हो गया, हाँ या ना? तो हम क्या करेंगे? क्या आपको दिख रहा है कि 12 से आप 37 को डिवाइड कर सकते हो? यस। 12 से 37 को डिवाइड करो कितना आएगा? 12 से 36, बस 1 बचेगा। तो 1x + 1 यानी कि x + 1 को किससे डिवाइड होना पड़ेगा? 12 से। अब x की सबसे छोटी वैल्यू बताओ जिसको रखते ही मैं डिवाइड कर दूं 12 से। x क्या है आपका? एक्चुअली x आपका एक क्वोशिएंट है। यस और नो? x मतलब क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट क्या होते हैं कभी भी? या तो 0 हो सकता है उससे बड़ा, कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो x की ऐसी छोटी वैल्यू बताओ जिसको रखने पे ये नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। x विल बी 11। सो कैन आई से दैट x विल बी 11? अगर x 11 है तो वही x 11 यहाँ भी काम करना चाहिए। करो 37 × 11 + 1 डिवाइडेड बाई 12। 37 × 11 कितना होता है? 407 + 1 408। 408 डिवाइडेड बाई 12 कितना होता है? 12 3 36, 12 4 48, 34। दिस 34 इज योर आंसर। इस पूरे क्वेश्चन को मैं चाहता हूं एक बार आप सुनो, करो, देखो अच्छे से। जहां भी आपको हेल्प चाहिए इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन को वापस देखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यूलर का एप्लीकेशन है इसके अंदर, और डिवाइजर डिविडेंड वाला भी रूल है। सो ऑब्वियसली इट कैन बी आस्क्ड। कौन कहता है कि नहीं पूछा सकता? पूछा सकता है भाई। आईपीमैट में डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे क्वांट के, है ना? ट्राई करना है आप सब लोगों को। कोई भी डाउट है तो बताना, मैं दोबारा एक ऐसा क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बट अब मेरे पास एक बहुत ईजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आई नो बहुत बोरियत हो गई होगी एंड यू मस्ट बी फीलिंग कि ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। सो यू कैन सॉल्व दिस वन, राइट? व्हाट इज दिस? 3 की पावर 100 mod 81, यानी कि 3 की पावर 100 को 81 से डिवाइड करना है। बहुत ही एक तरीके से मैं बोलूंगा स्टूपिड क्वेश्चन है। 3 की पावर 100, 3 की पावर 100 और 81, 81 भी तो 3 की पावर 4 होता है। यस और नो? तो 3 की पावर 100 को अगर आप 3 की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? इट इज एज सिंपल एज आस्किंग कि भाई 2 की पावर 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? बताओ 2 की पावर 3 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, बिकॉज 2 क्यूब होता है 8। अगर मैं पूछूंगा 2 की पावर 7 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? तो 2 की पावर 2 से 2 की पावर 7 कैंसिल हो जाता है, रिमाइंडर 0। यस और नो? अगर मैं बोलूंगा कि 2 की पावर 12 को 2 की पावर 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 0, बिकॉज 2 की पावर 5 2 की पावर 12 को कैंसिल कर देता है। यस और नो? कैंसिल हो जाता है उसके साथ। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के साथ कैंसिल हो जा रहा है, क्या 3 की पावर 4 3 की पावर 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा? यस। तो ऐसे केसेस में रिमाइंडर आएगा 0। या दूसरा आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये जो है 3 की पावर 100, इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 4 की पावर 25 डिवाइडेड बाई 81। यस और नो? नाउ दिस इज 81 की पावर 25 डिवाइडेड बाई 81, बिकॉज 3 की पावर 4 इज 81। 81 से आप 81 की कुछ पावर को डिवाइड करें तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा, बिकॉज अबव नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 81। इजी क्वेश्चन, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 0। तो कई बार आपको मल्टीपल दिया होगा सीधा सीधा, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में दिखाया था। यस और नो? इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस 50 का मल्टीपल 25 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देगा, बिकॉज एवरी मल्टीपल ऑफ 50 इज डिविजिबल बाय 25। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं आईपीमैट के PYQs पे, बात खत्म करते हैं। अगर आपने रिमाइंडर सीख लिया तो आप ये कर पाओगे। तो 11 की पावर 1011 प्लस 1011 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 9। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? देखो, यहाँ दो नंबर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, तो 9 एक बार इस नंबर को डिवाइड करेगा, एक बार इस नंबर को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर निकालेगा। अब मैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल भी लगाऊंगा। कैसे? 9 से आप 11 की पावर समथिंग को डिवाइड कर रहे हो, तो 11 का वैसे देखा जाए तो देखो इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करते हो 11 की पावर 1011 डिवाइडेड बाय 9, तो डिवाइजर कैन डायरेक्टली डिस्टर्ब द बेस।
ये कैसे लिखा जा सकता है? इट कैन बी रिटन लाइक 2, 9 से 11 को करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 2 की पावर 1011 डिवाइडेड बाय 9। ये सुनो, जस्ट अ सेकेंड। ओके 1011 ये लिख सकते हैं, बेस को डायरेक्टली डिस्टर्ब कर सकते हैं। 2 की पावर इतनी हाई है और 9 से डिवाइड हो रहा है, तो या तो आप भाई यहाँ पे क्या लगा सकते हो, यूलर, बिकॉज 2 और 9 क्या है, को प्राइम है, तो यूलर ऑफ 9 आप निकालना। यूलर ऑफ 9 के लिए क्या करोगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9, 3 स्क्वायर, तो 9 का एक ही प्राइम फैक्टर है 3, तो व्हाट विल बी यूलर ऑफ 9, 9 इंटू 1 माइनस 1/3 दैट इज 6, तो यूलर ऑफ 9 6 आएगा। 6 से आप पावर को डिवाइड करो, न्यू रिमाइंडर आएगा पावर में, न्यू पावर आ जाएगी, उसको आप फिर 9 से डिवाइड करके आंसर निकालो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप यूलर नहीं लगाना चाहते हो, आपको पता है कि ये क्या है, ये 9 2 की पावर समथिंग है, क्या मैं इस 2 की पावर समथिंग को 8 की पावर समथिंग लिख सकता हूँ? हाँ। अगर मैं इसे 8 की पावर समथिंग लिख रहा हूँ तो यानी कि 8 होता क्या है, 2 क्यूब। अगर आप इसको 2 क्यूब के पावर के फॉर्म में, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा अभी। तो अगर आप 2 क्यूब के फॉर्म में लिख रहे हो तो 3 से क्या नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए कि 1011 आ जाए, 1011 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए कि 3 आ जाए, 3 3 या 9 11, 3 3 या 9 21 7 337, ये सुनो, तो 8 की पावर 337 डिवाइडेड बाय 9। मैंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज इस 8 को बनाते ही मेरे लिए काम आसान हो गया। 9 से 8 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 की पावर 337 डिवाइडेड बाय 9। अब -1 की पावर और क्या देगा, -1 डिवाइड बाय 9, -1 डिवाइड बाय 9 में आप दोनों को प्लस करो, 9 और -1 को, आंसर आएगा 8। यानी कि इस पार्ट का रिमाइंडर कितना आ रहा है, इस पार्ट का, व्हेन 9 डिवाइड दिस पार्ट, रिमाइंडर विल बी 8। यस और नो, बाय आई मीन विदाउट यूजिंग यूलर इफ यू वांट टू डू इट। लेकिन अगर मैं इसी पार्ट को 11 की पावर 1011 डिवाइडेड बाय 9 को मैंने क्या किया, 2 की पावर 1011 डिवाइड बाय 9 कैसे किया, ये तो आपको पता है, मैंने डायरेक्टली डिस्टर्ब किया बेस को। बस अगर मैं इसको 1011 डिवाइड बाय 9 को यूलर से करना चाहता तो 2 और 9 को प्राइम है, यस, हाई पावर क्वेश्चन है, यस, यूलर लग सकता है, यस। तो यूलर ऑफ 9 निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले यूलर 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 9 इज 3 स्क्वायर, 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ एक ही प्राइम है 3, तो यूलर ऑफ 9 विल बी 9 इंटू 1 माइनस 1/3, दैट गिव्स यू 9 इंटू 2/3, दैट गिव्स यू 6। तो ये जो 6 आ रहा है आपका, ये यूलर वैल्यू 6 किसको डिस्टर्ब करेगा, 1011 को। 6 से 1011 को डिवाइड करो, कितना आता है, 6 1 जा 6, 41 बचेगा, 6 या 36, 50 बचेगा, 3, 2 क्यूब। तो 6 से 1011 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 3, 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 9, ओके, नॉट 6, डिवाइजर तो हमेशा 9 ही रहेगा, तो 8 डिवाइडेड बाई 9 दैट गिव्स यू 8 ओनली। तो यूलर लगा करके भी 8 आ रहा है, बिना यूलर के भी 8 आ रहा है, तो मुझे पता लग गया कि इस पार्ट का जो रिमाइंडर है वो आएगा 8। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8। मैंने ये पार्ट को सॉल्व कर दिया है कंप्लीटली, ठीक है। अब मैं इसे हटा देता हूँ, मैं दूसरा पार्ट सॉल्व करूंगा, 9 जब इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। मैंने ये पार्ट सॉल्व कर लिया ना, डिवाइडेड बाय 9, यस, बिकॉज इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 9, दिस पार्ट वाज गिविंग रिमाइंडर 8। अब इस पार्ट को डिवाइड करना है 9 से और रिमाइंडर निकालना है, तो 1011 की पावर 11 डिवाइड बाय 9। सी, एक और चीज बता रहा हूँ शॉर्टकट, ये 9 है, 9 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो अपना डिविजिबिलिटी रूल भी तो साथ लेके चलेगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इट इज सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। इस नंबर की सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 3, 1 + 0 + 1 + 1 3। तो एक्चुअली 9 अगर इस नंबर को डिवाइड करेगा ना तो रिमाइंडर 3 देगा, तो आप इसे ये लिख सकते हो। ये तो बात ही खत्म हो गई सीधे सीधे। तो कहीं पे ऐसी ऑब्जर्वेशंस काम करती हैं। तो 3 की पावर 11 को एक्चुअली आप 3 की पावर 2 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 0, यानी कि इस पार्ट का रिमाइंडर आ रहा है 0। दो रिमाइंडर्स मिल रहे हैं, 8 और 0 प्लस हो रहे हैं आपस में, 8 + 0 इज 8, 8 इज योर आंसर, 8 + 0 दो रिमाइंडर्स आए आपके। आईपी मेट PYQ 2025। आई थिंक द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। नाउ मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। दिस इज अ नंबर, find the remainder when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial up till the series is continuing till 95 factorial, it is divided by 15. So 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus up till 95 factorial, this is being divided by 15. I hope you all know what is factorial. जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बता देता हूँ, फैक्टोरियल होता है कोई भी नंबर n का फैक्टोरियल इज कंटिन्यूअस प्रोडक्ट टिल 1। जो फैक्टोरियल होता है सिर्फ 0 से बड़े नंबर का ही होता है। मैं फैक्टोरियल्स आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, जब व्हेन वी गो टू फैक्टोरियल्स वी विल स्टडी इट इन डिटेल। बट n फैक्टोरियल यानी कि n से शुरू करो और प्रोडक्ट की वैल्यू कम, आई मीन नंबर्स की वैल्यू कम करते जाओ जब तक आप 1 पे ना पहुंच जाओ। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर अब मैंने आपसे पूछा कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, दैट विल बी
4 से ही शुरू करो नंबर से, एक एक कम करते जाओ टिल यू रीच 1. सो 4 into 3 into 1 is 24. ठीक है, ऐसे यही फैक्टोरियल है. तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2 की फैक्टोरियल क्या हो जाएगी 2 into 1 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 into 2 into 1 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल दी, 5 फैक्टोरियल की 5 into 4 into 3 into 2 into 1 टिल 95 फैक्टोरियल. आपको हर नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा बाई 15, क्योंकि मैंने रिमाइंडर में बताया था कि अगर बहुत सारे नंबर ऐड हो रहे हैं और किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो इंडिविजुअली जो आपका डिवाइजर है वो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर निकालेगा. लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा सम कैसे निकाले और 15 से डिवाइड कैसे करें, क्या फैक्टोरियल्स की सीरीज का कोई सम का फॉर्मूला होता है? नो, नहीं होता है. ठीक है, अब सोचिए 15, क्या 15 के साथ ऐसा कोई केस बनेगा कि जो बहुत ये क्वेश्चन आसानी से हो जाए? यस, वो पता है क्या केस बनेगा? 15 है क्या एक्चुअली में? 15 इज एक्चुअली 5 into 3 या 3 into 5, वॉट एवर यू कॉल इट. ऐसे जितने भी फैक्टोरियल नंबर्स ऊपर आएंगे जिनमें 5 into 3 होगा तो वो 15 से डिवाइड हो जाएंगे ऑब्वियसली. जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि बताओ क्या 6 फैक्टोरियल 15 से डिवाइड होगा, तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. yes or no? so 6 5 4 3 2 1. क्या ये 15 यानी कि 15 क्या होता है 5 into 3 से डिवाइड होगा? हाँ, बिकॉज 5 भी कैंसिल हो जा रहा है, 3 भी. तो मैंने आपको बताया था जब डिवाइजर अपने आप को कैंसिल कर दे डिविडेंड के साथ तो रिमाइंडर 0 ही आएगा. तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा ऐसा फैक्टोरियल वैल्यू होगा जिससे 5 into 3 आना शुरू हो जाएगा? 1 के अंदर 5 into 3 है, नो. 2 फैक्टोरियल के अंदर 5 into 3 है, नो. 3 फैक्टोरियल के अंदर सिर्फ 3 है, नॉट 5 into 3. 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, क्या 4 के अंदर 5 into 3 है? नो. बट 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो 5 फैक्टोरियल के अंदर 5 into 3 हो रहा है और वो 5 into 3 इस 15 से जो कि अगेन 5 into 3 है डिवाइजर में उससे डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0. 6 फैक्टोरियल के अंदर भी 5 into 3 है, 7 फैक्टोरियल के अंदर भी 5 into 3 आएगा, 8 फैक्टोरियल के अंदर भी, 9 10 11 12 सो until 95 फैक्टोरियल. 95 फैक्टोरियल अगर आप लिखोगे तो 95 into 94 into 93 अल्टीमेटली जब आप नीचे को आओगे 1 तक सो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 उसमें भी आ जाएगा. तो यानी कि 5 फैक्टोरियल से लेकर के यहाँ पे 5 फैक्टोरियल होगा. या सुनो 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स ऑल द नंबर्स व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 15 दे ऑल विल गिव रिमाइंडर 0. तो इनका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये रिमाइंडर 0 देंगे बिकॉज हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं. सो अब मेरे पास नंबर्स ऑफ इंपॉर्टेंस क्या बचे? 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, 3 फैक्टोरियल की होती है 3 into 2 into 1 6, 4 फैक्टोरियल की होती है 4 into 3 into 2 into 1 दैट इज 24. 5 फैक्टोरियल से आगे को तो सारे नंबर रिमाइंडर 0 देके चले गए, गायब. divided by 15. What do you get? 33 divided by 15. क्या 33 को 15 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा? 3. That's your answer. Easy question. Okay. Let's go ahead. Now we have another PYQ. ये भी IP मैट के काफी पुराने क्वेश्चंस में आया था. ठीक है. What is this? 29 की पावर 29 then bracket 29 लगा हुआ है. तो here you can multiply these two powers because x की power a की whole power b is a into b. I mean powers can be multiplied, but this is never equal to. कभी भी 29 की power 29 की power 29 अगर without bracket लिखा होगा ना तो it is never equal to 29 की power 29 की power 29. ये ध्यान में रखना, बस ये प्लीज ध्यान में रखना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी. ठीक है. So now we'll just solve this question. Okay. So Can I just multiply 29? Yes. What do I get? 29 की पावर 29 स्क्वायर होता है 841 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है? 9 से. बहुत आसान क्वेश्चन. 29 और 9 को प्राइम है? हाँ, बिकॉज 9 29 को डिवाइड ही नहीं करता, को प्राइम है. को प्राइम है तो किसका यूलर निकालोगे? 9 का. यूलर ऑफ 9 6 होता है. प्लीज अपने आप कैलकुलेट करिए, देखिए. ठीक है. ये 6 किसको पावर को डिवाइड करेगा? 6 अगर 841 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा. तो न्यू पावर विल बी 29 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9. 29 की पावर 1 होता है 29. 29 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा रिमाइंडर? 9 3 27 2. 2 इज योर आंसर. बहुत आसान क्वेश्चन. ठीक है. लग टफ रहा है, कुछ है नहीं इसके अंदर. अब हम आ जाते हैं यूलर से बाहर थोड़ा सा. ठीक है. अभी हम रिमाइंडर्स के बहुत क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. मैंने बट आपको PYQ भी सॉल्व करके दिखा दिए. अगर आपको कोई इशू आता है प्लीज लेट मी नो. के फाइन. चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इसका क्या काम है? इट इज यूज्ड व्हेन यूलर इज नॉट एप्लीकेबल एंड डिवाइजर एंड डिविडेंड आर नॉट कोप्राइम. जब कोप्राइम होते हैं और पावर भी होती है तब तो हम यूलर लगाते हैं,
बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे कोप्राइम नहीं होते। देखो 46 की पावर 47 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 36 से। तो क्या 46 और 36 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन है दोनों में? इनका HCF निकालो। HCF ऑफ 46 एंड 36 इट इज 2। ये दोनों निकाल के देख लो 46 36 का HCF 2 है तो भाई कोप्राइम ही नहीं है। कोप्राइम नहीं है तो फिर कहाँ से यूलर लगेगा? लगेगा ही नहीं। फिर तो चाइनीज लगाना पड़ेगा। चाइनीज को करेंगे अगली क्लास में। विल फिनिश टुडेज लेक्चर्स हियर, ओके। एंड आई होप जितना भी मैंने आपको इससे पहले समझाया था यूलर वो समझ में आया, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। हाई पावर क्वेश्चंस कोप्राइम होना चाहिए। यूलर निकालो डिवाइजर का, पावर को डिवाइड करो, नया रिमाइंडर निकालो, दैट्स इट। बट कुछ क्वेश्चंस में आपकी आंखें खुली हुई नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्टली अगर बेस को डिवाइड करने पे या तो 0 मिल रहा है या डिवाइजर ही डिविडेंड का फैक्टर निकल रहा है। अगर डिवाइजर कैंसिल हो जा रहा है डिविडेंड के साथ तो रिमाइंडर 0, या डिवाइजर अगर डिविडेंड को डिवाइड करता है और रिमाइंडर +1 -1 आ रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हो। मैंने बिना यूलर के पावर छोटी कैसे करते हैं वो भी थोड़े केसेस बताए थे। तो इस सेशन को अच्छे से देखिए, ठीक है। आई होप रिमाइंडर्स में इसके बाद आपको कोई कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लास्ट वाला ये क्वेश्चन था 12 की पावर 107, वो तो आई मीन दिस इज एन OG क्वेश्चन, ओके। इसमें है एक्चुअली रिमाइंडर के थॉट्स। आई होप द सेशन इज क्लियर टू यू। डू कॉमेंट how you are feeling about these sessions. Are they putting confidence into you or not? If you want me to make any improvement, let me know. And do like this particular class, and do share with your friends if they are also preparing and they are struggling with numbers. And within few days, I mean maybe a week or so, 7-8 sessions में इसको और खत्म कर देंगे, ठीक है। The practice playlist of numbers is also attached in the description at the top. Do practice questions from there if you want to. Okay. Thank you so much. Subscribe to the channel. I'll see you again.